السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز RS یونانی فارمیسی، گردے پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ تلنگانہ حکومت نے 2 کارپوریشن کے چیئرمین کا کیا تقرر، جس میں NRI TRS کے بانی صدر انل کمار کو اسٹیٹ فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا چیئرمین اور وائی ستیش ریڈی کو اسٹیٹ ریڈکو کا چیئرمین کیا گیا مقرر۔ بارش کے دوران ریاست تلنگانہ کے ضلع وقارآباد کے مومن پیٹ منڈل کے کیسارام کے پاس ایک شادی کے باراتیوں سے بھری بس بارش کے پانی میں پھنس گئی۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں شہد کی مکھیوں کے حملے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر کئی افراد ہوئے زخمی۔ ملک بھر میں کورونا کے کیسز میں اضافہ، تلنگانہ میں بھی گزشتہ 2-3 دنوں سے کورونا کے مثبت کیسز میں اضافہ۔ تلنگانہ محکمہ صحت نے چوکسی اختیار کرنے کی دی ہدایت۔ ریاستی ڈائریکٹر آف پبلک ہیلتھ ڈاکٹر جی سنواس راؤ نے اس سلسلے میں ایک بیان بھی کیا جاری۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے شاد نگر کے چٹان پلی میں 2019 میں پیش آئے دشا انکاؤنٹر معاملے کی سماعت کی۔ ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی مفاد عامہ کی درخواستوں کے پیش نظر سماعت کو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر برقی جگدیش ریڈی نے ایک معذور مسلم شخص اور اس کے افراد خاندان کی بروقت مدد کرتے ہوئے انسانی ہمدردی کا کیا مظاہرہ۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے کہا، BJP رام راج کے نام پر راون راج کر رہی، کسی بھی شہری کے بینک کھاتے میں 15 لاکھ روپے نہیں آئے اور نہ ہی 2022 تک سب کو مکانات فراہم کرنے کے وعدے کو پورا کیا گیا۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں جگن موہن ریڈی حکومت کو اس وقت لگا دھکا جب عدالت نے وشاکھاپٹنم میں راجیو سواگروہا کے لیے مختص کردہ اراضی کے حراج پر حکم التوا کیا جاری۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس انفیکشن کے 12,249 نئے معاملے سامنے آنے کے ساتھ ہی متاثرین کی کل تعداد بڑھ کر 4,33,30,945 ہو گئی۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، مت کرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ حکومت نے 2 کارپوریشن کے چیئرمین کا تقرر کیا ہے، جس میں NRI TRS کے بانی صدر انل کمار کو اسٹیٹ فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا چیئرمین اور وائی ستیش ریڈی کو اسٹیٹ ریڈکو کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ ستیش ریڈی اس وقت TRS سوشل میڈیا کنوینر کے طور پر کام کر رہے۔ دونوں چیئرمین کی میعاد 3 سال رہے گی۔ حکومت کے چیف سیکرٹری سومیش کمار نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ بارش کے دوران ریاست تلنگانہ کے ضلع وقارآباد کے مومن پیٹ منڈل کے کیسارام کے پاس ایک شادی کے باراتیوں سے بھری بس بارش کے پانی میں پھنس گئی۔ اس علاقے میں ایک ریلوے برج کی تعمیر کی جا رہی ہے اور زیر تعمیر برج کے نیچے پانی جمع ہو گیا، جس میں بس بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ نہ ہی بس آگے بڑھ رہی تھی اور نہ ہی ڈرائیور اسے پیچھے لینے کے موقف میں تھا۔ بعد ازاں ریلوے کے عملے نے الیکٹرک موٹروں کے ذریعے پانی کی نکاسی کی اور بس میں پھنسے تمام مسافرین کو بحفاظت باہر نکالنے میں کامیاب
कामयाबी हासिल की गई, जिस पर उन्होंने राहत की सांस ली। मालूम हुआ है कि इस बस में हैदराबाद के बोराबंडा से ताल्लुक रखने वाले बाराती सवार थे जो कोई कोट्टीपल्ली से शादी के बाद वापस हो रहे थे। तेलंगाना के जगतियाल जिले में शहद की मक्खियों के हमले में एक शख्स हलाक हो गया और दीगर कई अफराद जख्मी हो गए। यह अफसोसनाक वाकया जगतियाल जिले के सारंगापुर मंडल के रिचापल्ली गांव में पेश आया। बताया गया है कि गांव की एक मंदिर में पूजा के लिए काफी भीड़ जमा थी। इस दौरान शहद की मक्खियों ने भक्तों पर हमला कर दिया। शहद की मक्खियों के अचानक हमले से मंदिर में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने भागने लगे। इस दौरान एक 80 साला भीमैया को मक्खियों ने बुरी तरह काट लिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में दीगर कई अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा। तेलंगाना में भी गुज़िश्ता 2-3 दिनों से कोरोना के मुस्बित केसेस में इजाफा देखा जा रहा। तेलंगाना महकमे सेहत ने चौकसी इख्तियार की है क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 403 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए। रियासती डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। हर एक को मास्क पहनने और गुंजान इलाकों में जिस्मानी फासला रखने की हिदायत दी गई है। 10 साल से कम उम्र बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को हंगामी सूरत हाल में बाहर जाने का मशवरा दिया गया है। दीगर अफराद को मुख्तलिफ मकासद के लिए बाहर जाते वक्त मास्क पहनने का हुक्म दिया गया था। जरूरी हो तो ही सफर करने का मशवरा दिया गया है। कोरोना की अलामत पर फौरी तौर पर महकमे सेहत के हुकाम से राब्ता करने और अद्वियात के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को सफर न करने का मशवरा दिया गया है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उनसे गुजारिश की गई है कि वो वैक्सीन ले लें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने शादनगर के चट्टानपल्ली में 2019 में पेश आए दिशा एनकाउंटर मामले की समाअत की है। हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई मुफाद आमे की दरख्वास्तों के पेश नजर समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी किया गया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंद कुमार शावली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने ये समाअत की। मुकदमे में अदालत के माउन सीनियर वकील डी प्रकाश रेड्डी ने बताया कि 6 दिसंबर 2019 को इस्मत रेजी के 4 मुलजिमीन एनकाउंटर में हलाक हो चुके हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती कमीशन कायम किया था। कमीशन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले की तमाम दरख्वास्तों को हाई कोर्ट से रुजू किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट हाई कोर्ट के माउन वकील के हवाले करने की हिदायत देते हुए तहकीकात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने एक माजूर मुस्लिम शख्स और उसके अफराद खानदान की बरवक्त मदद करते हुए इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा किया है। सूर्यापेट में अपनी रिहाइशगाह पर जगदीश रेड्डी अवामी मसाइल की समाअत कर रहे थे कि दोनों पैरों से माजूर नजीर पाशा वहां पहुंचे ताकि अपने और खानदान के मसाइल से वाकिफ कराएं। वजीर बरक़ी अवाम से मुलाकात के बाद घर में दाखिल हो रहे थे कि उनकी नजर उस माजूर शख्स पर पड़ी। वो फौरी नजीर पाशा के पास पहुंचे और तफसीलात हासिल की। नजीर पाशा की समाअत से वजीर बरक़ी बेहद गमगीन हो गए और फौरी इमदाद फराहम करने साथियों को हिदायत दी। बताया जाता है कि गुज़िश्ता साल बीमारी के सबब नजीर पाशा दोनों पैरों से महरूम हो गए। वो घर के वाहिद कमाने वाले शख्स हैं। वो अपनी अहलिया के साथ वजीर बरक़ी के कैंप ऑफिस पहुंचे। जगदीश रेड्डी ने बीमारी के वजूहात और मौजूदा मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की और फौरी तौर पर नजीर पाशा को ट्राईसाइकिल डबल बेडरूम मकान फराहम करने का तयख्खुन दिया। उन्होंने अपनी जानिब से नजीर पाशा की माली मदद की। वजीर बरक़ी ने कहा है कि वो इस खानदान की मुस्तकिल आमदनी के लिए कोई न कोई जरिया पैदा करेंगे। नजीर पाशा और उनकी अहलिया ने वजीर बरक़ी की बरवक्त मदद और तवज्जो दहानी पर इजहार तशक्कुर किया। जगदीश रेड्डी ने अफराद खानदान की तालीमी और माशी मदद का भरोसा दिलाया है। वजीर केटीआर ने आज VEM टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का संगे बुनियाद रखा। संगारेड्डी जिले में निम्स जहीराबाद में लिमिटेड का मरबूत दिफाई निज़ाम VEM 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रहा और अगले 5 सालों में 2000 लोगों को मुलाजिमत देगा। VEM एक मशहूर दिफाई और एरोस्पेस कंपनी है जो जमीनी, फजाई और बहरी एप्लीकेशंस के लिए मुख्तलिफ हथियारों के निज़ामों के लिए एंड टू एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और निज़ाम पेश करती है। VEM ने हुकूमत के साथ एक नया दाखिला सरमायाकारी MOU 2021 में तेलंगाना के लिए अक्टूबर में। इस मौके पर MP BP पाटिल, MLA मनिक राव, क्रांतिकरण भोपाल रेड्डी, MLC सिरे सुभाष रेड्डी, TSIIC के चेयरमैन G बालामुलु, जिले परिषद के चेयरमैन P मंजेश्वरी, जयपाल रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जय शिरंजन के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क भर की कई रियासतों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुस्लिम राय दहिंदों को मुत्तहिद करते हुए उन्हें करीब करने की कोशिश की जा रही और ताहाल मजलिस ने रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन तेलंगाना के अलावा बिहार और महाराष्ट्र में अपनी कामयाबी दर्ज करवाई। लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के साथ सेक्युलर जमातों बिलखसूस कांग्रेस को भी जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हुए ये इस्तफसार कर रहे कि जहां मजलिस मुकाबला नहीं करती वहां सेक्युलर जमातें बीजेपी को शिकस्त क्यों नहीं दे रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की रियासती असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने की पॉलिसी से मजलिस को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, लेकिन वोट शेयर में इजाफा होने लगा है जो कि पार्टी को मुस्तहकम कर रहा। सदर मजलिस की जानिब से जो नजरिया पेश किया जा रहा, इस नजरिए के साथ वो इस बात की भी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं वो ये साबित कर सकें कि वो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम के तौर पर काम नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों को मुत्तहिद करते हुए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे। बयान के जानिब से किए जाने वाले दावे के मुताबिक सियासी माहिरीन का कहना है कि वो मुस्लिम राय दहिंदों को राग़िब कर रहे और सेक्युलर पार्टियों पर उनकी जानिब से की जाने वाली तनकीदें मजलिस के हक में राय दही करने वालों की तादाद में इजाफे का सबब बन रही। असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा ये कहा जाता रहा कि नाम निहाद सेक्युलर सियासी जमातों के कायदीन मुसलमानों को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे कि मजलिस के उम्मीदवार और मजलिस मुसलमानों के वोटों को मुनक़्क़िम करने की कोशिश कर रही। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को उस वक्त धक्का लगा जब अदालत ने विशाखापट्टनम में राजीव स्वगृह के लिए मुख्तस करदा अराजी के हराज पर हुक्म इल्तवा जारी किया। राजीव स्वगृह के तहत मकानात की तामीर के लिए जो अराजी अलॉट की गई थी उस पर हुकूमत की जानिब से मकानात तामीर नहीं किए गए। बरखिलाफ इसके हुकूमत ने अराजी को बाज़रिया हराज फरोख्त करने का फैसला किया। 25 एकड़ अराजी के फरोख्त की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी, जिसके खिलाफ तेलुगु देशम के रुकन असम्बली वी राम कृष्णा बाबू ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की। रुकन असम्बली के वकील अश्विनी कुमार ने अदालत को बताया कि गरीब और मुतवस्सित तबकात के लिए मकानात की तामीर के मकसद से जो अराजी मुख्तस की गई उसे हराज की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अदालत से हराज का अमल रोकने की दरख्वास्त की गई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के दलाइल से इत्तफाक करते हुए हराज पर रोक लगा दी। हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी गई है। हिंदुस्तान के मशहूर बल्लेबाज विराट कोहली ने मालदीव से हिंदुस्तान पहुंचने के बाद कोविड-19 का मुस्बित तजुर्बा किया है। काबिल जिक्र बात यह है कि विराट कोहली मालदीव से भारत पहुंचने के बाद अस्पताल पहुंच गए, जिससे बहुत से आबरू उठ गई। ताहम इस वक्त किसी चीज की तस्दीक नहीं हुई थी। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि विराट कोविड-19 से मुतासिर है, लेकिन इंग्लैंड के दौरे के लिए टीम के साथ सफर करने के लिए वक्त पर सेहतयाब हो गए हैं। विराट को लेस्टर की सड़कों पर देखा गया
जहां उन्होंने मदाहों के साथ तस्वीर क्लिक की। हाँ, विराट को भी मालदीव में छुट्टियां गुजारने के बाद वापस आने के बाद कोविड का निशाना बनाया गया था, लेकिन वो अब सेहतयाब हो गए हैं। एक जराये ने ये बात बताई है। हिंदुस्तानी स्पिनर और अश्विन भी कोविड-19 के मुस्बित टेस्ट के बाद होम क्वारंटीना में हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि अश्विन टीम के साथ यूके नहीं गए थे, लेकिन तवक्को है कि वो लेस्टर शायर के खिलाफ टूर गेम से कबल स्क्वाड में शामिल होंगे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address: बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत ने 2 कॉरपोरेशन के चेयरमैन का किया तकर्रुर, जिसमें NRI TRS के बानी सदर अनिल कुमार को स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन और वाई सतीश रेड्डी को स्टेट रेडको का चेयरमैन किया गया मुकर्रर। बारिश के दौरान रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद के मोमिनपेट मंडल के केसाराम के पास एक शादी के बारातियों से भरी बस बारिश के पानी में फंस गई। तेलंगाना के जगतियाल जिले में शहद की मक्खियों के हमले में एक शख्स हलाक और दीगर कई अफराद हुए जख्मी। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में इजाफा। तेलंगाना में भी गुज़िश्ता 2-3 दिनों से कोरोना के मुस्बित केसेस में इजाफा। तेलंगाना महकमे सेहत ने चौकसी अख्तियार करने की दी हिदायत। रियासती डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने इस सिलसिले में एक बयान भी किया जारी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने शादनगर के चट्टानपल्ली में 2019 में पेश आए दिशा इनकाउंटर मामले की समाअत की। हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई मुफाद आमे की दरख्वास्तों के पेश नजर समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने एक माजूर मुस्लिम शख्स और उसके अफराद खानदान की बरवक्त मदद करते हुए इंसानी हमदर्दी का किया मुजाहरा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म मुनस्क केटिया ने कहा, बीजेपी रामराज के नाम पर रावण राज कर रही। किसी भी शहरी के बैंक खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए और न ही 2022 तक सबको मकानात फराहम करने के वादे को पूरा किया गया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जगनमोहन रेड्डी हुकूमत को उस वक्त लगा धक्का जब अदालत ने विशाखापट्टनम में राजीव स्वगृह के लिए मुख्तस करदा अराजी के हराज पर हुक्म इल्तवा किया जारी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 12,249 नए मामले सामने आने के साथ ही मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 4,33,30,945 हो गई। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।